Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. And yes, if you are calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। आज कार्यक्रम में सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है लालिमा नेजा। Thank you, Vishal. Yes, the headlines first. Retail inflation rises to 4.91% in November. Industry production grows 3.2% in October this year. Domestic equity indices witnessed losses of more than 0.5%. Sensex closes below 58,500. Nifty finishes below 17,400. And global stocks trade mixed. खुदरा मुद्रास्फीति की दर नवंबर में 4.91% पर पहुंची। औद्योगिक उत्पादन इस वर्ष अक्टूबर में 3.2% बढ़ा। घरेलू शेयर बाजारों में 0.5% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स 58,500 से नीचे और निफ्टी 17,400 के स्तर से कम पर हुआ बंद। और वैश्विक शेयर बाजारों में मिला जुला कारोबार। Retail inflation based on Consumer Price Index CPI has risen to a 3-month high of 4.91% in November this year. As per the Ministry of Statistics and Program Implementation data released today, this is the 5th month that the retail inflation has remained within the RBI's target band of 2 to 6%. The CPI inflation in rural India stood at 4.29% and 5.54% in urban areas in the review period of last month. The retail inflation had risen to 4.48% in October from 4.35% in September. RBI maintains retail inflation at 4% with margin of 2% on either side. After 5 months, the CPI data in May has overshot the Reserve Bank's upper margin of 6%. Country's Index of Industrial Production IIP grew 3.2% in October. In September, industrial production had risen 3.1%. Among the major sectors, the mining index in October gained 11.4% and electricity index advanced 3%. The manufacturing index rose %. IIP has maintained significant growth from March 2021 onwards, aided by a continuing low base effect last year. IIP is a key economic indicator of the manufacturing sector. The 8 core industries, electricity, steel, refinery products, crude oil, coal, cement, natural gas and fertilizers comprise more than 40% of the weight of items included in the Index of Industrial Production. जी, हमारे आज के सबसे पहले कॉलर पंकज दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो 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 हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, सवाल पूछें डॉक्टर अनिल खरबंदा। आई एम सॉरी पंकज। मेरे 3 क्वेश्चन है मैम। पहला, आज का सडन फॉल का रीजन क्या था? दूसरा, मार्केट अभी स्टिल बाई ऑन डिप्स है या क्या है? और कौन से सेक्टर है जो अपने को प्रेफर करने चाहिए स्टॉक्स के लिए, नया इन्वेस्टमेंट के लिए? जी, पहला सवाल आपका सडन फॉल के लिए है। मार्केट ओवरऑल ऑसिलेट कर रही है जो है ओमिक्रॉन के इफेक्ट को लेकर के,
और जो फेड टेपरिंग हो सकती है उसको लेकर के मार्केट में काफी हद तक एक वॉलेटिलिटी मेंटेन्ड है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है कि क्या इफेक्ट रहेगा ओमिक्रॉन का और सेंट्रल बैंक्स उसके तरफ क्या रिएक्ट करेंगे। दूसरा सवाल कि मार्केट में आप अभी डिप है या नहीं, वो अगेन काफी वॉलेटिलिटी में रहेगी। सडन डिप्स और इंक्रीज आप देखेंगे, पर क्योंकि ये वायरस के जो वेरिएंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी तरफ आप देखेंगे कि अगर वो बढ़ता है तो फॉल करेगी और नहीं बढ़ता और उसको कंट्रोल में लाया जाता है तो वो राइज करेगी। जहां तक सेक्टर्स का सवाल है, वहां पे आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर एक एवरग्रीन सेक्टर्स हैं जिनमें निवेश कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहें तो कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे सेक्टर रहेंगे। All right, we are joined by Dr. Anil Kharbanda calling us from Delhi. जी, सवाल पूछें। जी, लालिमा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा विशाल जी से बात। विशाल जी का जो अमृत महोत्सव में आता है बड़ा अच्छा, मैं सुनता हूँ, बड़ा आनंद नहीं लगे। जी धन्यवाद। दूसरी बात डिमांड है, हम कहते डिमांड एंड इफेक्टिव डिमांड, इन दोनों में और सेकेंडरी परचेजिंग पावर और डिमांड अनिल जी, आपकी आवाज बहुत क्रैक कर रही है, क्या एक बार फिर से सवाल पूछ सकते हैं? हाँ, मैं ऊंचा अब आ रही है हाँ, हाँ, जी, अब पूछिए। जी, डिमांड सप्लाई चेन जो होती है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं एक तो ये जानना चाहता हूँ जी। और डिमांड और इफेक्टिव डिमांड में क्या अंतर है और परचेजिंग पावर से लॉजिकल लिंक क्या है। और सेकेंडली कि इन्फ्लेशन जो शब्द है, इन्फ्लेशन का इंक्रीमेंटल मीनिंग होता है क्योंकि बढ़ रही है या बढ़ रही है, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी तो गिर रही होती है उस सूरत में। ये अर्निंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये मैं चाहता हूँ समझाएं थोड़ा। जी, जब हम इफेक्टिव डिमांड की बात करते हैं तो हम बात करते हैं विलिंगनेस टू बाय एंड कैपेसिटी टू बाय। जब ये दोनों चीजें होती हैं तो हम उसे इकोनॉमिक्स के अंदर इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। कॉमन पैरेलेंस में यूजुअली किसी भी चीज को जब आप डिजायर करते हैं तो उसे डिमांड कहते हैं। जब भी इन्फ्लेशन होता है या महंगाई होती है तो एक जनरल सस्टेन्ड इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स होता है, जिसके तहत आपका जो पैसा है उसके अंदर आप जितना सामान खरीद सकते हैं उससे कम खरीद पाते हैं, क्योंकि जो है उसकी वैल्यू घटती जाती है। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कि परचेज करने की कितनी कैपेसिटी है उस मनी में। जी, इन्फ्लेशन की बात हो रही है डॉक्टर यामिनी, तो अभी ये आरबीआई की जो एक कंफर्ट जोन है जो 4 से 6% के बीच में अभी उसी में बना हुआ है, लेकिन आरबीआई ने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद कहा था कि आगे आने वाले महीनों में कुछ बढ़ सकती है। क्या आपको लगता है कि महंगाई अभी कंट्रोल में रहेगी या कुछ और आगे बढ़ सकती है? जी देखिए, इसका काफी असर क्रूड ऑयल प्राइसेस पे भी रहेगा। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ते हैं तो उसका सीधा असर हमारे जो है अर्थव्यवस्था पे भी पड़ेगा, जिसमें महंगाई का दर बढ़ सकता है, क्योंकि वो सीधा पेट्रोल और डीजल पे जाएगा और बाकी सारी चीजों के ऊपर उसका असर नजर आएगा। All right, we are now joined by Hasmukh Dedia from Mumbai. जी, सवाल पूछें। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। गुड इवनिंग जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन जो अभी डिस्कशन हो रहा था उसी के थोड़ा सा मैं आगे लेके जा रहा हूँ कि आरबीआई ने ये कहीं दिसंबर में चांस मिस तो नहीं किया, क्योंकि फरवरी के अंदर उसके पास में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, स्पेशली इन द बैकग्राउंड ऑफ falling rupee, high inflation, and not so good IIP number. जी देखिए, ये स्थिति पे निर्भर करेगा कि ओमिक्रॉन का क्या इफेक्ट रहता है आगे आने वाले कुछ 2 महीनों के अंदर, और कितना देश उसके लिए प्रिपेयर्ड रहता है, और कोई भी संभावना अगर लॉकडाउन की पड़ती है तो आरबीआई को अकोमोडेटिव स्टैंस मेंटेन करना पड़ेगा, जो अभी भी बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स देख रहे हैं। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के अंदर हमें पता चलेगा कि यूएस और बाकी सारे सेंट्रल बैंक्स आगे जाकर के क्या कदम उठाने वाले हैं इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए और ओमिक्रॉन का इफेक्ट देखते हुए। अनिल आहूजा फोन लाइन पर हैं दिल्ली से। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? पंकज गोयल मुंबई से। जी ओके पंकज जी, सवाल पूछें। जी सवाल पूछें। सर, जब आप मार्केट में रिकमेंड करते हैं कि कोई भी शेयर्स को खरीदना है तो ऑन बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स एंड ऑन बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस खरीदना है, पर सडनली एक्सटर्नल फैक्टर्स, चाइना में कोई
बिल्डिंग कंपनी का लोन बढ़ गया या फेड ने यूएस में लिक्विडिटी कम करने से ये फंडामेंटल्स और टेक्निकल सब साइड में रह जाते हैं और स्टॉक मार्केट इतना गिर जाता है. तो व्हेन कैन वी थिंक अबाउट कि ये एक्सटर्नल यूएस के फेड एंड ऑल दैट विल नॉट अफेक्ट आवर मार्केट एंड इट विल बी ओनली ड्रिवन बाय फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स. जी देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी आता है, जिसके अंदर इकोनॉमी को इवैल्यूएट किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में, जिसमें एक्सटर्नल पैरामीटर्स भी कंसिडर किए जाते हैं. तो वो एक पार्ट होता है फंडामेंटल्स का. टेक्निकल एनालिसिस में बाय एंड सेल इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं स्टॉक प्राइसेस पे स्टैटिस्टिकली आइडेंटिफाई करके. तो दोनों ही एनालिसिस रखे जाते हैं. फंडामेंटल से आप कंपनी का स्टॉक पिकअप कर सकते हैं और टेक्निकल एनालिसिस से कब खरीदना है और बेचना है वो पिकअप कर सकते हैं. All right, before we move on to more questions, let's go in for a short break. We'll be back soon. Please stay tuned, listeners. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ. सिंपल है छोटे, कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो. पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ. ओ तो ये बात है. हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया, तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया. बड़े भैया. छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी. Welcome back. Dr. Yamini, today's report says that the CPI inflation in rural India stood at 4.29% and 5.54% in urban areas. How do you view this? Well, overall, the state of inflation is affected by the crude oil prices and also because of the supply chain disruptions that have been seen because of the pandemic still, affecting the economy. Also, if the status of the pandemic effects have been reduced primarily because there have been vaccinations and there have been overall recoveries. But because the international crude oil prices continue to remain at a higher level, we do see an effect of inflation. It will take time for the economy to gear up back to its previous levels. Again, depending upon how Omicron affects the economy, if it again affects the economy, we will see again supply chain disruptions and more inflation. So the Omicron effect is looming large still, and we'll have to wait and watch how things go. Well, we have Anil Ahuja from Delhi online. Ji, Anil ji, sawal puche. Hello, good evening, panelists. Good evening. My question is, what is Kasa ratio in banking system? And the second is, if the book value of a company is greater than the trading value, the company will be believed a good company or bad company? Please answer. Thank you. Well, Kasa is a current account and saving accounts ratio, which is there, which is with respect to the accounts that one has in the bank. And when you talk about book value to trading value, if the book value is higher than the trading value, it's an undervalued stock. And automatically more people will prefer to buy it. But these stocks usually also have lesser liquidity. So sometimes when investing in them, one needs to look at whether there is sufficient amount of an exit route given the liquidity in the market. जी, और कोलकाता से अतानु साहा सवाल पूछना चाहते हैं. हेलो. हाँ जी. हाँ, कोलकाता. Atanu Saha from Kolkata. My first question is, what is investment? Who are investors? And my second question is, how government promoting or influence foreign entity to investment? Thank you. When we talk about investment, it is usually the objectives in which we are wanting to invest to gain certain amount of returns. It is a duration-bound money which is spent on certain items which may be instruments or financial instruments or others from where we are wanting to seek returns after a period of time. People who invest are known as investors. As far as promoting investments and for the FIIs is concerned, the macroeconomic indicators are essential for the FIIs as well as the regulatory framework with which a country operates, which includes how fast it gives the business licenses, how fast it is to get electricity, how fast it is to get certain other contracts implemented and other things. Also macroeconomic indicators like your GDP
inflation rate and many other indicators are used by FIIs to actually invest into an economy. Right. We have Jitendra online who's calling us all the way from Jaipur. Yes, Jitendra ji. हाँ, मैडम जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक आरबीआई का बुलेटिन आया है नवंबर मंथ का, तो उसमें उसका न्यूज हेडलाइन था कि नेट परचेजर $7 बिलियन, तो मतलब उसका निचोड़ है कि $2,000 परचेज किया गया है और $1,500 सेल किया गया, तो नेट परचेजर इतना हो गया 500 या 700। इसका मतलब क्या हुआ? जी देखिए, आरबीआई की आप किस स्पेसिफिक न्यूज की बात कर रहे हैं वो कहना मुश्किल है, पर जब आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाती है तो वो खरीद और बेच सकती है यूएस डॉलर्स को। ओवरऑल मार्केट में वॉलेटिलिटी को जो है रिड्यूस करने के लिए और एक सस्टेनेबिलिटी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रुपए को वहां पे नेट परचेजेस कितने रहे हैं ओवरऑल पीरियड के अंदर वो आपको बताते हैं। जी, गाजियाबाद से गौरव फोन लाइन पर हैं। हेलो, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। जी, गुड इवनिंग। My question is about fiscal prudence. Is there any organ or is there any ministry or is there any monitoring authority which provides for the fiscal prudence so that government or political parties do not overpromise and do not overspend where it is in the not interest of the nation and the country as a general? So is there any organ, is there any body, monitoring body which controls government for fiscal prudence? Thank you. It is a parliament only. You have the FRBM Act which is supposed to be followed, whereby you are supposed to maintain the fiscal deficit within 3% region. जी, और अब रुक करते हैं शेयर बाजारों का। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। सेंसेक्स 58,300 से नीचे बंद हुआ, जबकि निफ्टी 17,400 के स्तर से नीचे आ गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.86% के नुकसान से 503 अंक लुढ़ककर 58,283 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 143 अंक फिसलकर 0.82% की गिरावट से 17,368 पर आ गया। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.53% की गिरावट रही, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.24% की बढ़त दर्ज हुई। We are now joined by Pavan Kumar calling from Delhi. Yes, Pavan ji, please ask your question. जी नमस्कार यामिनी जी। जी नमस्कार। हाँ जी, ये शरद जी भी हैं टीम में आज। हाँ जी। जी, मेरा सवाल है कैपिटल रिडक्शन के बारे में। लास्ट सैटरडे जो है शरद कॉलेज जी से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा भी ये सवाल अगली बार आप जरूर रखना, उसका जवाब जरूर देंगे। हाँ जी, पूछिए। मेरा सवाल है कैपिटल रिडक्शन के बारे में। किसी कंपनी ने आईटी कंपनी थी वो, और मैं बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ उस कंपनी का, मेरे पास शेयर थे। तो उन्होंने एक ही दिन में एक प्रस्ताव पास करके और शेयर पूरे बेच के उसकी पूंजी 20 गुना एकदम कम कर दी है जी। इसकी कानूनी सलाह मुझे दीजिए प्लीज। जी, यूजुअली कैपिटल रिडक्शन कंपनी अपने आप नहीं कर सकती। कैपिटल रिडक्शन के लिए उसे बायबैक करना होता है, और बायबैक जब वो शेयर्स करती है तो वो शेयर्स को फिजिकली डिस्ट्रॉय करती है या ओवरऑल डिस्ट्रॉय कर देती है। उससे कैपिटल रिड्यूस किया जा सकता है। कैपिटल अपने आप बैलेंस शीट में से किसी के भी सीए के या किसी के भी कहने से रिड्यूस नहीं किया जा सकता। जी, और अब यहाँ लेंगे हम एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे, कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome back, friends. We move on with more news on the Sensex. Well, the Sensex and the Nifty today fell more than 0.5%. Both stocks declined amid mixed cues from the global equity markets. The Sensex was closed below 58,300, while the Nifty settled below 17,400 level. The BSE Sensex declined 503 points or 0.86% to trade at 58,283.
The NSE Nifty also slipped 143 points or 0.82% to trade at 17,368. In the broader market at BSE, the mid-cap index fell 0.53%, while the small-cap index gained 0.24%. In the Sensex Pack, shares of 7 companies climbed while 23 fell. Axis Bank was the top gainer as it climbed 2.4%, followed by Tech Mahindra which surged 2.2%. Maruti gained 1.2%. On the other hand, Bajaj Finance declined 3.1% and Bajaj Finserv fell 2.3%. Reliance ended 2% down and Mahindra slipped 1.9%. In sectoral indices, 18 out of 19 sectors fell. Energy sector stocks were top losers as the index declined 1.8%. Oil and gas and realty both plunged 1.2%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,868 companies gained while 1,608 fell. Shares of 161 companies remained unchanged. So, Dr. Yamini, while we see this, we had touched 60,000 when the census touched, we had experts once predicting and it actually happened. What are the reasons that you find we are now hovering somewhere around 58 for quite some time now? Well, I think there is a certain amount of an uncertainty which has been created in the market because of the new variant. Overall, again, the FIIs have been net sellers, primarily because there have been indications and signals from the Federal Reserve with respect to the tapering of the bond buying. But then every time there is a signal and the FIIs move their portfolios, there is some or the other uncertainty that is created. Presently, the uncertainty is with respect to the Omicron. Also, what is affecting the market is the challenge of inflation, which then gets continuously fueled by the international crude oil prices, where the OPEC is not increasing the supply, and that affects the many of the central banks to bring about a balancing act both towards recovery as well as trying to control the inflation. जी, डॉक्टर यामिनी, आज 2 आर्थिक आंकड़े सामने आए, एक तो इन्फ्लेशन का, रिटेल इन्फ्लेशन का, और एक औद्योगिक उत्पादन का। इन्फ्लेशन के मोर्चे पे देखें तो थोड़ी बहुत चिंता की बात जरूर है, लेकिन औद्योगिक उत्पादन बड़ा है। ये बताता है कि मतलब अपने आप में कि इकोनॉमिक रिकवरी तेजी से हो रही है। इसका शेयर बाजार किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है इन दोनों चीजों पर? जी देखिए, जो ओवरऑल रिकवरीज हैं और जितना भी रिफॉर्म का प्रोसेस चल रहा है, उसको मार्केट ने एक बहुत ही पॉजिटिव साइड को लेते हुए मार्केट्स को कहीं ज्यादा ओवर वैल्यू किया है देन व्हाट द फंडामेंटल्स आर, क्योंकि जो रिकवरी प्रोसेस रहा है वो काफी हद तक वी शेप्ड रहा है, जिसके अंदर देखा गया है कि ज्यादातर इंडिकेटर्स, चाहे वो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हो, जो 19 इंडिकेटर्स थे 22 में से, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे थे। ओवरऑल इकोनॉमी में जो प्रोजेक्शंस भी हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज से हों, चाहे वो हमारे घरेलू एजेंसीज से हों, वहां पे सभी जगहों ने प्रोजेक्ट किया है कि 9.5% ग्रोथ रेट रहेगा, आगे आने वाले सत्र में भी रहेगा, और ओवरऑल जो स्टिमुलस है वो भी कंटिन्यूड है, तो वो उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रखा है। जी, और अब घरेलू मुद्रा के प्रदर्शन पर नजर डालें। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया आज 2 पैसे मजबूत होकर $1 के मुकाबले 75 रुपए 76 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। बात करें वैश्विक बाजारों की, सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार। एशियाई शेयर बाजारों में आज मिलाजुला कारोबार रहा। जापान का निकेई 0.7% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.4% की बढ़त में रहे। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5% लुढ़क गया और हांगकांग का हैंगसेंग 0.3% की गिरावट में रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.2% के नुकसान के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों में भी आज कारोबार मिला-जुला रहा। लंदन का FTSE 100 बिना किसी उतार चढ़ाव के लगभग सपाट कारोबार कर रहा था। फ्रांस का कैक 0.2% की बढ़त दिखा रहा था, जबकि जर्मनी के डेक्स में 1% का उछाल आया। And now we're joined by Ratnakar, calling us from Mumbai, very regular listener of ours. जी रत्नाकर जी, सवाल पूछें। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। अभी दिसंबर एंड तक ओवरऑल मार्केट कैसा रहेगा, और जो इन्वेस्टर है तो अभी बाइंग करने के लिए ये अच्छा सीजन है क्या?
और कौन से सेक्टर में अभी ज्यादा ध्यान देके वो हम परचेस कर सकते हैं? जी देखिए, दिसंबर एंड तक एक पॉजिटिव मोड में रहेगी मार्केट। जहां तक नजर आ रहा है वहां पे ओमिक्रॉन का इतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए, पर उसके बारे में अभी कुछ भी कहना उस स्थिति के बारे में मुश्किल है। अगर उसका इफेक्ट नहीं रहता तो दिसंबर एंड तक काफी हद तक इसी लेवल से और इससे हायर लेवल पर ही आपको दिखेगी। बाइंग के लिए शायद ये समय बहुत सही नहीं है, क्योंकि मार्केट्स डिप कर सकती हैं कुछ पीरियड के बाद, तब खरीदा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओवरऑल मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा और वो एक हायर लेवल पे ही जाने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि रिकवरीज पॉजिटिव हैं। I think he's asked the question which many must have been pondering upon. Well, let's move on to oil prices now. Well, oil prices today witnessed losses of more than 0.5% in intraday trade. Brent crude was trading around $74.60 per barrel, while WTI crude prices were at $71.20 per barrel. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने में 150 रुपए की तेजी रही। फरवरी अनुबंध के लिए सोना 48,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी में भी 175 रुपए की मजबूती दर्ज हुई। मार्च अनुबंध के लिए चांदी का भाव 61,325 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर सोना बढ़त के साथ $1,788.40 प्रति औंस, जबकि चांदी मामूली बढ़त से $22.20 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे डॉक्टर यामिनी आपसे कि राइजिंग इन्फ्लेशन और कोरोना ओमिक्रॉन का जो जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में क्या ये गोल्ड को सपोर्ट करने वाले हैं? जी, जितनी भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है वो गोल्ड को सपोर्ट करती है, क्योंकि वो एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है। And India has a voracious appetite for gold buying, especially for festivals and New Year coming. And wedding season is also on. Wedding season as well. Right, friends. Now, before we close, here's a reminder of the headlines. Retail inflation rises to 4.91% in November. Industry production grows 3.2% in October this year. Domestic equity indices witnessed losses of more than 0.5%. Sensex closes below 58,500. Nifty finishes below 17,400. And global stocks trade mixed. Well, Dr. Yamini, thank you so much for coming to our program and updating us with your views. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is Lalima Aneja Dang and my co-anchor Vishal Sharma bidding adieu. Namaskar. Namaskar. Market